رہے ہیں. ہمارے یہاں کے جنرل سیکرٹری شاہد حسین صاحب ہو جائیں یا امیر صاحب مولانا احمد حسین صاحب ہو جائیں، جمالی صاحب، اللہ ان سب کو خوش رکھے. یہ بہتر ترتیب پہ کام کر رہے ہیں آپ سب حضرات کے تعاون کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ مولانا احمد حسین جمالی صرف عالم نہیں ہیں بلکہ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ کے مقابلے میں الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں. آصف علی زرداری اپنے گھر میں جو ہوگا میری جماعت کے اس تحصیل کے امیر کے مقابلے میں الیکشن، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارے مولویوں میں یہ جرات آ جائے نا، یہ ہمت آ جائے نا، یقین مانے وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم وڈیروں کے اور ان 2 نمبروں کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے. بس آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. میں پنجاب جاتا ہوں تو پنجاب کے تمام علماء کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح علماء کرام کو اپنا منصب سنبھال کر آگے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس طرح مقابلے میں آئیں گے. جب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے مواقع کھلیں گے. دوسری بات، جمعیت علماء اسلام کیا ہے، کیا چاہتی ہے، میں اسی عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. یہ جمعیت علماء اسلام نظام مصطفیٰ چاہتی ہے. نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ جل شانہ سے دین لے کر آئے، اس دین کو عملی زندگی میں نافذ کیا جائے. اور یہ ترتیب صحابہ ہے، یہ ترتیب نبوی ہے، یہ ترتیب امت ہے جو آج تک ہمارے پاس آ رہی ہے. میں مثال کے طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری جماعت ہے یہ روز اول سے دین کے مشن پہ قائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا نام تو 1941 میں بنا، جمعیت علماء ہند کا نام تو 1919 1918 1920 میں شیخ الہند نے دیا. آپ لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا یہ شجرہ علمی بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی سوال کر سکتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی ہے جب خیر القرون کا زمانہ گزر گیا تھا، 210 ہجری کا زمانہ ختم تھا، 216 ہجری میں خیر القرون کے زمانے کے بعد جب 3 خوبصورت صدیاں گزر گئی تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری لکھی ہے. تو امام بخاری کو حضور کی باتیں کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور سلسلہ در سلسلہ آئی ہے، چاہے 3 صدیوں کا فاصلہ ہو. میں نے کہا جمعیت علماء اسلام بھی رسول اللہ کی بات کو لے کر چل رہی ہے، چاہے صدیاں قائم ہوں لیکن تسلسل کے ساتھ علماء کرام اسی محنت کو لے کر چل رہے ہیں. یہ شیخ الہند نے جو ہمیں جمعیت علماء دی ہے، یہ شیخ الہند نے ہمیں رسول اللہ کی امانت دی ہے. جمعیت علماء اسلام کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ ذرا ہمارا جو دستور 1968 میں چھپا تھا جمعیت علماء کا، اس وقت جمعیت علماء اسلام آل پاکستان جنرل سیکرٹری تھے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس پر دیباچہ اور مقدمہ لکھا تھا. اگر آپ اس مقدمے کو پڑھ لیں تو آپ کو جمعیت علماء اسلام کی ہسٹری، جمعیت علماء اسلام کی تاریخ سمجھ آئے گی کہ جمعیت علماء اسلام اپنے اندر ہسٹری کیا رکھتی ہے. میرے دوستو، وہ لکھتے ہیں جس کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اس بر صغیر میں جنہوں نے دین کے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس شخص کا نام مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ ہے. مجدد الف ثانی جس کی قبر پہ علامہ اقبال نے جا کر کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی ہے احرار، جس نے قلعہ گوالیار کی جیل کاٹی ہے وہ شخصیت ہے جس نے یہاں نظام مصطفیٰ کی بنیاد رکھی ہے. خاندان ولی اللہ ہی ان کے بعد ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اگر دلی میں بیٹھ کے دین کی خدمت کر رہے تھے تو مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹھے میں بیٹھ کے اس مشن کو آگے چلانے والے تھے. میرے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی بات کو لے کر ہمارے اکابر جو چلے ہیں تو یہی ترتیب آج ہمیں جمعیت علماء اسلام کے ذریعے ملی ہے. اچھا، میں اس پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. جمعیت علماء اسلام صرف مولویوں کی جماعت نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام صرف داڑھی ٹوپی پگڑے والی کی جماعت نہیں ہے.
जमीयत उलमा इस्लाम हर मुसलमान की जमात है, और अगर हुकूक पे डाका बढ़ेगा तो हर वतन के बासी की जमात है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। ये हज़रत शेखुल हिंद ने हमें यही सबक दिया है। शेखुल हिंद जिस वक़्त जज़ीरा अंडमान की कैद काट के आए थे, सारी माल्टा की कैद काट के आए थे, तो वापसी पर हज़रत शेखुल हिंद ने जो बात लिखी है, आज मुताला शेखुल हिंद छप चुकी है, आप उसको पढ़ लें। हज़रत शेखुल हिंद फरमाते हैं मैंने 4 साल अंग्रेज़ की कैद काटी है, मैं 2 किस्म के नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आज हम दुश्मन के मुकाबले में अगर पिस रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। हज़रत शेखुल हिंद ने लिखा है पहली वजह यह है कि हम मुसलमानों में फ़िरका वारियत है, हम बटे हुए हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ़ कौमियतें, मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ इलाके, मुस्तकिल तौर के ऊपर ये मसल की दीवारें खड़ी हैं, जिसकी वजह से हम मुस्लिम बन के बात नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम एज ए मुस्लिम बात नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहते हैं हम कुरान करीम से दूर हैं। जो दो चीज़ें ये हैं, इस वजह से हम कुफ्र के मुकाबले में नहीं ठहर सकते। फरमाया हम इन 2 चीज़ों का मुकाबला करके आगे आएंगे। तो शेखुल हिंद ने जमीयत उलमा की बुनियाद रखी। जमीयत उलमा की बुनियाद में हकीम नुसरत जावेद, जमीयत उलमा की बुनियाद में हज़रत हकीम अजमल ख़ान, जमीयत उलमा हिंद के बुनियाद में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद में हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी और हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, ये शेखुल हिंद के बाजू बने और ये देवबंद मदरसे से आगे चले, ये कॉलेजेस तक गए, यूनिवर्सिटीज़ तक गए, स्कूल तक गए और गली मोहल्लों तक गए, चौक और चौराहों तक गए और उलमा से निकल के आवाम में पहुँचे और जमीयत उलमा के पैगाम को पहुँचाया। आपको पता है शेखुल हिंद की वफ़ात कैसे हुई, किस जगह हुई, किस वक्त हुई? हज़रत शेखुल हिंद अलीगढ़ का सफ़र कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का, मिलिया का सफ़र कर रहे हैं, कॉलेजेस का, और शेखुल हिंद की तबीयत इतनी ख़राब है, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं कि हमने उन्हें एक चारपाई पे उठाया हुआ है, उस पालकी पे उठाया हुआ है, और शेखुल हिंद बीमार हैं। नकाहत और कमज़ोरी और ज़ौफ़ की वजह से शेखुल हिंद बात नहीं फरमा सकते, लेकिन आहिस्ता बोलते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी तकरीर लिखवाई है। लिखी किसने है? अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ये तकरीर लिखी, नोक पलक उसकी दुरुस्त की। जब वो सफ़हात और किरतास पे आई तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी की ज़िम्मेदारी लगाई कि आपने मेरी तरफ से मेरी मौजूदगी में इस तकरीर को पढ़ना है। शेखुल हिंद चारपाई पे स्टेज पर सोए हुए हैं और ये शागिर्द हज़रत शेखुल हिंद की तकरीर को पढ़ रहे हैं। ये जमीयत उलमा की बुनियाद शेखुल हिंद ने इस वक्त रखी है। हम पढ़ें तो सही, अपने बड़ों को देखें तो सही, वो इस तरह पहुँचे हैं। आज शेखुल हिंद के इस मिशन को लेकर उलमाए कराम जमीयत उलमा की शक्ल में जो ठहरे हैं वो रसूलुल्लाह की उसी विरासत के वारिस हैं जो बर्र सगीर में सहाबा कराम के ज़रिए पहुंची थी या उनके शागिर्दों के ज़रिए पहुंची है। महराज टंडू आदम में एक जुमला कह रहा था, मैंने कहा बाबुल इस्लाम कहते सिंध को इसलिए है कि ये इस्लाम का दरवाज़ा है जो मोहम्मद बिन कासिम ने सन 92 हिजरी में यहाँ पर हमला किया है और एक खातून की आवाज़ पे वो यहाँ आया है और वो दीन लेकर आया है। तो वो जो दीन लेकर आया था वो यही था कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के निज़ाम को नाफिज किया जाए। आज जो हम कहते हैं कि जमीयत का मकसद, जमीयत का पैगाम, खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, ये लफ्ज़ हमारे हैं, ताबीर उसी दीन की है, लफ्ज़ हमारे हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इसी चीज़ को लेकर चल रही है। आपके जहन में एक जुमला आएगा, मैं उसको भी समझाता जाऊँ कि शेखुल हिंद ने तो जमीयत उलमा हिंद दी है, आज जमीयत उलमा इस्लाम है। ये फ़र्क क्यों है? इस फ़र्क को समझें। आप हमारे कारकुन हैं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप लोगों ने आगे आगे जाकर बात पहुँचानी और समझानी है। आज इसी पर प्रोपागंडा चलता है। लोग जमीयत के कारकुन की हिम्मत, उसका हौसला और उसकी सलाहियत को तोड़ने के लिए एक जुमला कह देते हैं कि भाई शेखुल हिंद ने तो जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद रखी थी, उसने जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद तो नहीं रखी, लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम और है और जमीयत उलमा हिंद और है, उनका मिशन और मौक़िफ़ और है, इनका मिशन और मौक़िफ़ और है। अच्छा, कोई लल्लू पंजू ये बात करता ना तो मुझे इस पर रद्द करने की ज़रूरत न पड़ती। सफ़ेद पगड़ी सर पे रख के, सफ़ेद दाढ़ी के साथ और उस पगड़ी के ऊपर एक छोटी सी चादर रख के, उसको रख के इस तरह बातें समझाई जा रही हैं जैसे जमीयत उलमा इस्लाम कोई और हो और जमीयत उलमा हिंद कुछ और हो।
आओ मैं आपको जवाब समझाने लगा हूँ। ये दो बातें हो सकती हैं, या तो मुताला नहीं है, अकाबर को पढ़ा नहीं है, इन्हें मालूम नहीं है इस वजह से कर रहे हैं, या इन्हें मालूम है तो फिर गैर के आलाकार बन रहे हैं, फिर किसी के टाउट बन रहे हैं, बूट पालशिया बन रहे हैं, कुछ और वजह है जिसकी बुनियाद पे जमीयत की ताकत को तोड़ने की ये नाकाम कोशिश हो रही है। तो मैं जवाब देने लगा हूँ। एक अरबी शायर ने कहा था, इन कुंत तदरी फतिल का मुसीबतुन, इन कुंत ला तदरी फतिल का मुसीबतुन फ़इन कुंत तदरी फल मुसीबत आज़मु, का तुम्हें नहीं पता तो फिर एक मुसीबत है, तुझे पता है और तो गलत कर रहा है तो फिर मुसीबत दर मुसीबत है। नारे तकबीर, नारे इस्लाम, जिंदाबाद कुरैशी, जिंदाबाद। ये जो जमीयत उलमाए हिंद है, ये शेखुल हिंद ने उस वक़्त कायम किया जब पाकिस्तान के नाम का कुछ मामला ही नहीं था, मारज़ वजूद में आने की बात नहीं थी। कुल्लुहुम मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो जमीयत उलमाए हिंद नाम रखा। लेकिन जब मुल्क पाकिस्तान बनने का वक्त आया, 1940 की करारदाद पास हुई, उस वक्त शेखुल हिंद को फौत हुए 20 साल गुजर गए थे। शेखुल हिंद का इंतकाल 30 मई 1920 को है, 20 साल गुजर चुके थे। तो शेखुल हिंद के शागिर्द मौजूद थे जिन्हें मालूम था कि पाकिस्तान बन जाएगा। वो जमीयत उलमाए हिंद के बुनियादी रुकन थे। हज़रत मदनी हिंदुस्तान में जमीयत उलमाए हिंद की क़यादत कर रहे थे, और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह तक़सीम हिंद के नज़रिए के कायल थे, और वो यहाँ तशरीफ़ ले आए थे कराची में। तो उन्होंने 1945 के लगभग पाकिस्तान बनने से पहले एक जमीयत की बुनियाद रखी। उन्हें पता था तक़सीम हिंद हो जाएगा, उसका नाम रखा जमीयत उलमाए इस्लाम। सुने सुने, पूरी बात सुने। जब जमीयत उलमाए इस्लाम नाम रखा और उन्होंने ये तंजीम बनाई, ये शेखुल हिंद का बराह रास्त शागिर्द है, ये शेखुल हिंद का बराह रास्त परवुर्दा है, शेखुल हिंद के इमलाई तकरीरों को पढ़ने और लिखने वाला है, आम बंदा नहीं है, हज़रत मदनी का साथी है। इन्होंने बुनियाद रखी और उस वक्त तक़सीम हिंद हो गया। मुल्क पाकिस्तान सल्तनत खुदादाद मारज़ वजूद में आ गई। अब जमीयत उलमाए हिंद वहाँ, जमीयत उलमाए इस्लाम यहाँ। अगर ये जमात अलग अलग होती, इनका मिशन, मौक़िफ़, काज, बयानिया एक न होता, तो कभी जमीयत उलमाए हिंद जमीयत उलमाए इस्लाम को सीने से न लगाती। अब मैं मिसाल देने लगा हूँ। उस वक़्त जो जमीयत उलमाए हिंद के अमीर थे वो मौलाना मदनी थे और हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत लाहौरी हैं पंजाब से, लेकिन आपके सिंध का फैज़ लेकर गए हैं हज़रत इमरोटी रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत लाहौरी जो थे उस वक़्त जमीयत उलमाए हिंद पंजाब के सूबाई अमीर थे, क्योंकि सूबा पंजाब मुश्तरक था। तो हज़रत मदनी का टेलीग्राम आया। उस ज़माने में टेलीग्राम होता था, तार घर के ज़रिए फैक्स किया जाता था, और हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी को फरमाया कि आप अगरचे हमारे सूबाई अमीर हैं, लेकिन आपको चाहिए आप जमीयत उलमाए इस्लाम को संभाल लें। सोचा आपने, जमीयत उलमाए हिंद का मरकज़ी अमीर अपने सूबाई अमीर को जमीयत उलमाए इस्लाम संभालने का हुक्म कर रहा है। अगर दोनों एक नहीं थे तो क्यों हुक्म किया? जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, नारे तकबीर। आज इस्टेब्लिशमेंट के टाउट मेरे कारकुन के सामने ये हिस्ट्री मसख करने के लिए कहते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम और थी, जमीयत उलमाए हिंद और है। मैंने कहा अगर तुम जैसे अमसाल की हम ये बात मान लें तो मेरा एक सवाल है, जब भी मुल्क पाकिस्तान में जमीयत उलमाए इस्लाम ने आलमी सतह का प्रोग्राम किया है तो उनके मेहमान खुसूसी जमीयत उलमाए हिंद वाले क्यों होते हैं? अगर ये एक नहीं है, मैं दो मिसालें आपको अपनी ज़िंदगी की देता हूँ जो मैंने देखी हैं। 9, 10, 11 अप्रैल 2001 तारो जवाब पिशावर 150 साल खिदमत दारुल उलूम देवबंद कॉन्फ्रेंस। आप बड़े उसमें सारे शामिल थे। 3 दिन का इज्तिमा। उस ज़माने में 20 लाख से अबव अफराद मौलाना फजलुर रहमान के झंडे तले ठहरे हैं, और मेहमान खुसूसी कौन है? हज़रत हुसैन अहमद मदनी का बेटा मौलाना असद मदनी जमीयत उलमाए हिंद का अमीर, मौलाना मरगूबुर रहमान दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम, ये वहाँ शामिल है। मैंने अपनी इन्हीं आँखों से उनकी ज़ियारत की, उनकी गुफ्तगुएँ सुनी वहाँ। ये जमीयत उलमाए हिंद जमीयत उलमाए इस्लाम के पास क्यों है? अच्छा, फिर दूसरी बात, उसके बाद
इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के मैदान में जमीयत उलमा हिंद ने बैनुल अक़वामी सतह पे कॉन्फ्रेंस की है, और उस ग्राउंड का नाम है रामलीला ग्राउंड में, जिसमें हज़रत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर खालिद महमूद सुमरू शहीद रहमतुल्लाह उसमें मौजूद हैं, और अपने मशहूर अशआर पढ़ रहे थे। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो। ये हज़रत जो वही पढ़ रहे हैं, और वहाँ मेहमान आने खुसूसी हमारी जमीयत उलमा इस्लाम के बंदे और आखिरी बयान कर रहे हैं कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। अगर जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा इस्लाम एक नहीं है, मौक़िफ़ मिशन एक नहीं है, शेखुल हिंद के नज़रिए के दोनों हामिल भाई भाई नहीं है, तो वो अपने बड़े प्रोग्राम में हमें और हम अपने बड़े प्रोग्राम में उन्हें क्यों बुला रहे हैं? ये हमारे कारकुन के सामने ये तारीख़ मसख करने की कोशिश होती है, और कहा जाता है हम तुम्हें जमीयत उलमा की तारीख़ बताएंगे। भाई तुम क्या बताओगे? हमारी तारीख़ तो टाउटों से टकराने वाली है, टाउट बनने वाली नहीं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मौलाना फजलुर रहमान को एक जुमला कहा था कि मौलाना मान लो हम गुलाम हैं। मौलाना आज भी सुनाते रहे कि जी मान लो हम गुलाम हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ जवाब दिया था, इतनी बात तो ठीक है कि तुम कहते हो कि हम यहाँ ग़ुलाम हैं, लेकिन आपके और हम में एक फ़र्क है। तुमने ग़ुलामी मान ली है, और मैंने अपने अकाबिर से ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आज़ादी की जिद्दोजहद सीखी है। बस यही है ना। हमने टकराना सीखा है, तुमने मानना सीखा है। हमने लड़ना सीखा है, तुमने बूट चाटना सीखा है। हमने उठना सीखा है, तुमने झुकना सीखा है। और हमने कटना सीखा है, तुमने हटना सीखा है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। अब्दुल वाहिद कुरैशी आज हमारे कारकुनों के सामने तारीख मसक कर रहे हैं। अच्छा, एक मिसाल और लीजिए, अभी रिसेंटली 2017 की लीजिए। हमने अपनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम का 100 साला मनाया है। क्या मनाया? आप सारे शरीक थे या नहीं थे? लाखों का इज्तिमा, इमाम काबा वहाँ मौजूद हैं। कितने 100 साला मनाया? अगर ये 1940 में बनी थी जमीयत उलमा इस्लाम, तो फिर तो 100 साल तो नहीं बनते, फिर तो 100 साल नहीं बनते। ये तो 1917-18 में शेखुल हिंद ने बुनियाद रखी थी, तब 100 साल बनते हैं। अच्छा चलो, एक मिनट के लिए नऊज़ुबिल्लाह मैं इस बूढ़े के झूठ को मान लेता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम और है, तो फिर जमीयत उलमा हिंद के लोग, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी के हज़रात और ये सारे लोग इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करने के लिए क्यों आए हैं? वो कहते तुमने हमारी जमीयत उलमा हिंद के नाम पे झूठ बोला है। नहीं भाई, वो तो आ रहे हैं, हिंदुस्तान से आ रहे हैं, इधर आके मेहमान खुसूसी बन रहे। मैंने खुद यूं गुफ्तगू करते मौलाना मदनी को वहीं देखा है। हम स्टेज पे थे, ये रात को जब दूसरे दिन की गुफ्तगू हो रही थी, जुमेरात की रात को, ये आखिरी गुफ्तगू तो मौलाना महमूद मदनी ने वहाँ की है, हज़रत मदनी के पोते ने की है, ये जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी ने की है। क्यों की है? क्यों आए हैं वो कहते हैं भाई 7 साल तो हमारा है, तुम क्यों मना रहे हो? वो आए भी हैं और हमारे 7 साल को कबूल भी किया है, क्योंकि वो और हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। टाउट चाहे जितनी चादरें सर पे रख के आ जाए ना, ठीक है ना, जितनी पगड़ियां पहन के आ जाएं, जितने सरकारी बोर्ड लेकर आ जाएं, जितनी टाउटी करना चाहे कर लें, इस अहले हक के दरो दीवार को न कल तुम हिला सकेंगे न आज हिला सकेंगे। बस अपने अकाबर की तारीख को याद कर लो, हमारे अकाबर ने जो जुद्दोजहद हमें सिखाई है इसको याद कर लो। ये जमीयत उलमा हिंद की तारीख और जमीयत उलमा इस्लाम की। अच्छा मैं एक बात और करता हूँ, सुने। मुल्क पाकिस्तान का आज आइन, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माई कंट्री, हमारे मुल्क की जिसको मुकद्दस किताब कहा जाता है आइन, इस आइन की बुनियाद 22 निकात पे है। ये 22 नुकात क्या हैं? ये किसने लिखे थे? किसकी बुनियाद पे ये मामला कायम है? कहते हैं ये अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने अपने कलम से लिखे थे। मैंने कहा वही तो शेखुल हिंद का शागिर्द है और जमीयत उलमा इस्लाम की पाकिस्तान में बुनियाद रखने वाला है। किस बुनियाद पे आप कह रहे हो? अच्छा ये सिलसिला वहीं से चला है, ये जो 1973 का आइन बना है। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के जुमले सुने, आज तक ये जुमला कहते हैं मौलाना कि 73 के आइन के तनाजुर में हम यूँ कह रहे हैं। इस पर कुछ लोग मीम्स बना के कुछ क्या एतराज़ करेंगे, 73 के आइन के तराजू। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि खालिक के आइन जो है
وہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے اکابر ہیں اور وہی اس چیز کو لے کر بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان آئین کی بنیاد اسی 22 اسلامی نکات پہ رکھی تھی جو جمعیت علماء نے پیش کیے تھے. اور قائد اعظم محمد علی جناح تو ان کی اتنی قدر کرتے تھے. قائد اعظم کے جو ADC ہے نا وہ زیارت میں ہیں اور قائد اعظم کی وفات سے چند روز پہلے ADC کال کرتے ہیں اس زمانے کے جو ٹیلی گرام ہے کن کو؟ کراچی میں کراچی کے گورنر کو کہ جی علامہ شبیر احمد عثمانی کو انگیج کیا جائے. جی بتائیں کیا پیغام دیں؟ کہ جی علامہ کو قائد اعظم کہہ رہے ہیں 1948 چل رہا ہے اور یہ وقت میرے ذوف اور نقاہت کا ہے, شاید میرا انتقال ہو جائے, آپ ان دنوں آؤٹ آف سٹی سفر نہ کرنا, کراچی سے باہر, میں فوت ہو جاؤں گا تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. بانی پاکستان بھی جانتا ہے کہ جمعیت علماء کا بانی کون ہے. آج کے ٹاؤٹ اگر یہ ٹاؤٹی کریں اس سے جمعیت علماء کا موقف کبھی کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ 1973 میں مولانا مفتی محمود نے جس قوانین کے اوپر محنت کی, مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے محنت کی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے محنت کی, حضرت مولانا تھانوی, جتنے حضرات اس زمانے میں تھے ان سب نے جو محنتیں کی ہیں یہ اسی محنت کا ثمر ہے جس کی ترتیب اسی طرح ہی چل رہی تھی. اور میرے دوستو, یہ جمعیت علماء اسلام, یہ جمعیت علماء ہند, یہ جمعیت علماء ایک تھے. اگر بر صغیر میں دین پہنچا حضرت مجدد الفسانی سے لے کر خاندان ولی اللہ تک, خاندان ولی اللہ سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک, وہاں سے حضرت مولانا نانوتوی تک, وہاں سے حضرت شیخ الہند تک, پھر شیخ الہند کے شاگردوں حضرت مدنی, حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی, مولانا شبیر احمد عثمانی تک, پھر ان سے لے کر مولانا احمد علی لاہوری تک, حضرت مولانا نور محمد سجاولی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا امروٹی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید امروٹی رحمہ اللہ, اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ, ان سب کے سلسلہ در سلسلہ اس مشن کا آج وارث ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے. یہ انہی اکابر کا ایک سلسلہ ہے, یہ اسی اکابر کو لے کر آئے ہیں اور یہ ہمارے اکابر کی ترتیب ہے اور ہمارا ایک ہی ماٹو ہے کہ جمعیت کا مقصد, جمعیت کا پیغام, خدا کی زمین پر خدا کا نظام. یہ چیزیں آج دہرانی بھی چاہیے, آگے بتانی اور سمجھانی بھی چاہیے اور ساتھیوں تک اس کی آواز بھی پہنچائیں اور اس تاریخ کو خود بھی پڑھیں اور آگے بھی پڑھائیں تاکہ جو گدھے پہ بیٹھنے والے ہیں وہ گھوڑوں پہ بیٹھنے والے کا مقابلہ نہ کر سکیں, کر بھی نہیں سکیں گے. میں یہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ فسوف ترا اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار, کہ ابھی دھول ہے, جب دھول چھٹے گی پھر تمہیں نظر آ جائے گا کون گدھے پہ سوار تھا کون گھوڑے پہ سوار تھا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب